Shark Tank India, I don't mean any copyright infringements. Your video is free to watch on YouTube, and this is my reaction to it. This is my review to it. I want to critique people that come here to watch my video. I am going to teach them and show them what my opinions are and show them what's what. So please, there's no copyright infringement intended here. And if you don't like my reaction, please contact me. Please let me know and we will figure something out. हाँ भाई, सबसे पहले तो कोई हेयर कट नहीं कराया मैंने. मैं सुबह सो के उठा था उस वक्त, मेरे बाल ऐसे खड़े हुए थे, इसलिए ऐसा लग रहा था मैंने हेयर कट कराया. मैंने कोई हेयर कट नहीं कराया. Why are people saying कि ओ भाई पता है आपने हेयर कट कराया, you don't have to. I've never said it one time. I didn't do shit. Why are you guys blaming me for that shit? Anyway, बहुत दिन हो गए. We haven't checked out Shark Tank India, and I didn't know there was a new season going on. Let's go and check out 50 Lakhs Ask. Okay, let's watch it. Hi Sharks. Hello. एक बॉलीवुड फिल्म की तरह ही हर साल लाखों रेस्टोरेंट्स हीरो की तरह एंट्री मारते हैं. Okay. लेकिन इंटरवल के पहले ही विलन से हार जाते हैं. एक्सक्लूडिंग कोविड पिछले 2 साल में ही 3 लाख रेस्टोरेंट्स बंद हो गए. I'm not surprised. कौन है ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का बदमाश विलन? लो प्रॉफिट्स और हाई स्टाफ डिपेंडेंसी. पर इन्हीं विलन्स को हर एक सेकंड, इज दैट ट्रू? लो प्रॉफिट्स? आर यू सीरियस? रेस्टोरेंट बिजनेस में लो प्रॉफिट है तो खोले ही क्यों है? फूड बिजनेस इज वन ऑफ द हायर प्रॉफिट मार्जिन प्लेसेस, राइट? यू कैन मेक गुड मनी, जस्ट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है. फूड कॉस्ट को अगर आप लो रखो, लेबर कॉस्ट को आप लो रखो, एंड देन लो अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल इन इंडिया. Is that for real, bro? I refuse to believe it. You don't have labor in India, तो फिर कहाँ है और दुनिया में? China, India, these are the countries where लोगों की तो कमी नहीं है. बाकी सब is the issue. Everyone's ready for a job. Like I post one community post for 12 hours कि मैं editor hire कर रहा हूँ. I get like 95 emails. So I don't believe that. I've worked in food industry. My family has food industry business, so I understand a little bit of it. I'm no expert, but I understand a little bit of it. In my opinion, a food business doesn't do well when there's no retention. When the customer doesn't come back is your problem. Then you have a failing restaurant. If your customer can come back to you, you'll succeed. No matter what happens, in due time, you will succeed. I'm not saying she's wrong. I'm just trying to understand, like, is that like the only 2 reasons? But I guess she's done her research. She doesn't look like an amateur. She's, she has a whole brand, and this is big money we're talking about. So let's keep watching. को हराने आ गया है एक नया सुपर हीरो, दिल फूड्स. Dill Foods. नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ अर्पिता आदिति, दिल फूड्स की फाउंडर एंड सीईओ. Okay. दिल फूड्स Okay. एक वर्चुअल रेस्टोरेंट ऑपरेटर है जो भारत के डिफरेंट रीजन्स एंड कल्चर से इंस्पायर होकर फ्रेश फूड ब्रांड्स बनाता है और अपने लास्ट माइल कुकिंग और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देश के छोटे बड़े एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप करता है. This is what I hate about capitalism. They come up with new words that makes no sense. They only make sense to them. क्या बोला? Virtual? What? I'm gonna listen to this again. दिल फूड्स एक वर्चुअल रेस्टोरेंट ऑपरेटर है. Virtual restaurant operator. What does that even mean, bro? Like you just sit at home and dictate things on the computer? Another just heads up. If you guys don't like what I have to say about it, there is a very good solution, which is to just right off. No, I'm kidding, but guys, don't leave, please. Please watch. I'm kidding. I'm joking, guys. I love you all. Please stay, watch. Also, आपने किया नहीं ना अभी तक? टूटा हुआ मैं कब से वेट कर रहा हूँ. सुबह बहुत सारे लोग सुबह कर लेते हैं उठते ही. आपने नहीं किया अभी तक. कर दो सब्सक्राइब प्लीज. कर दो ना यार, कर दो. मैं वेट कर रहा हूँ. मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पे. मैं चाय पीता हूँ. डन. सब्सक्राइब, लाइक किया वीडियो को. आई लव यू. चीते, लेट्स गो. चीते बना देते हैं ग्रुप. हाँ, चीता आर्मी. फर्रुख के चीते, भाई के चीते, चीते चीतों के चीते, लौंडे चीते, चीते लौंडे. I don't know. You guys decide. इंस्पायर होकर फ्रेश फूड ब्रांड्स बनाता है और अपनी लास्ट माइल कुकिंग और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देश के छोटे बड़े एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप करता है. शार्क्स, इमेजिन कीजिए एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसकी हर दिन की कैपेसिटी है 100 गेस्ट. अब उसके स्टाफ और रिसोर्सेज तो रेडी है 100 लोगों के लिए, लेकिन गेस्ट आते हैं सिर्फ 50. ऐसे में ये रेस्टोरेंट दिल फूड से जुड़कर हमारे 8 क्लाउड ब्रांड में से कोई भी ब्रांड अपने किचन से पैरेलली ऑपरेट कर सकता है, जिससे उसके रिसोर्सेज तो फुल्ली यूटिलाइज होते ही है, साथ ही उसका रेवेन्यू भी बढ़ता है. मतलब सेम किचन, 0 एडिशनल इन्वेस्टमेंट, बट ब्लॉकबस्टर मुनाफा. मुनाफा. सोच रहे होंगे कि जब आप स्विगी या जोमैटो से हमारे किसी ब्रांड से ऑर्डर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा स्टैंडर्डाइज्ड, हाइजीनिक, रीजनल इंडियन फूड जिसका टेस्ट जैसे माँ के हाथ का खाना.
Damn, these are some tall claims, bro. माँ के हाथ का खाना ऐसा मतलब इतना authentic taste होगा, इतना authentic. माँ के हाथ का खाना लगेगा. Ooh, I'm excited. Also, I was right about her. She knows her shit, bro. अभी तो मैं यहाँ कैमरे के पीछे बैठ के चौड़ा बन रहा हूँ. If she's right in front of me, I would not be able to, I won't be able to go toe to toe with her. I would not be able to. She's very smart. पिछले 1.5 साल में ऑलरेडी 65 प्लस रेस्टोरेंट से जुड़ चुके हैं, Good. जहाँ से हम हमारे 111 आउटलेट्स ऑपरेट करते हैं. Ooh. हमने अभी तक हमारे रेस्टोरेंट पार्टनर के लिए 6 करोड़ से ऊपर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू करवा दी है. That is pretty impressive, bro. हमारा सपना है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बिल्ड करना, जहां कोई भी रेस्टोरेंट लो रेवेन्यू या लो प्रॉफिट्स के कारण बंद ना हो. बड़ा अच्छा कॉज है हम आपका. तैयार हैं अपने सपने को साकार करने के लिए, और आपको हमारे सपने से जोड़ने के लिए हम आपसे चाहते हैं 50 lakhs for 0.5% equity. Sharks. When someone asks for like 50 lakhs for 0.5% equity, that means they're valuing their business at 100 crore rupees, right? And you already know this is not because they need the money. This girl is not here for the money. पैसों की किल्लत होती तो ये यहाँ नहीं आती, ब्रो. इसका बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी. 6 करोड़ की बिजनेस जो उसके पार्टनर्स हैं उनके लिए बना चुकी है ऑलरेडी. या शी इज हियर फॉर द शार्क्स. दैट्स व्हाट शी इज हियर फॉर. आई कैन ऑलरेडी मैंने बहुत देखा है शार्क टैंक यूएस, ब्रो. मैं बता रहा हूँ. मैं गलत हुआ तो मैं मान लूंगा मैं गलत हूँ. देखते हैं आगे चल के. दिल को एक बार दिल दे के तो देखो. हाय हाय, शी हैज एवरीथिंग, ब्रो. बनियों में ना कहते थे पहले, दिल जीतना हो तो पेट से जीतते हैं. सब एक लाइन होती थी. दिल का रास्ता Yeah. पेट से जाता है. Oh my god, bro. The way rich people fuck up popular culture is just so amazing to me. They just destroy. There's a video clip of some Ambani guy or someone. He's telling the airplane joke. कि वो जहाज में गुजराती भाई बोलता है ये ले 10 रुपए, मुझे भी नहीं पता करके. You know that old joke? He took his phone, Googled everything, this, that, and said, don't know. And he ruins the joke. And then everybody in the crowd is like, ha ha ha, Ambani bhai, bahut ala Ambani bhai. Can I get $2,000, please? Oh man, these rich people, they're so disconnected from reality, bro. पेट पूजा कर ले. Okay. He's happy. He's like, yeah. पेट पूजा हो जाए. Okay. दिस इज सो गुड. मतलब मुझे तो स्मेल ही बड़ा इतना अच्छा आ रहा है. रितेश, आपको मिला है हमारे पेरी पेरी खिचड़ी, और साथ में आपके एक ट्रे में है बनारसी चाट. भाई तो बहुत ही एक्साइटिंग है. अमन, आपके पास ट्रे है हाउस ऑफ आंध्रा ब्रांड का. अमन बिजी है. आपके ट्रे में है पहाड़गंज वाले छोले कुलचे. बहुत आला छोले कुलचे, ब्रो. ट्राई करेंगे हमारा टमाटर चाट. आई थिंक मेरे पास भी टमाटर चाट है. आपके पास भी टमाटर चाट है. आपके पास कढ़ी चावल है. कढ़ी चावल. एंड पीयूष के पास है बिहार का फेमस लिट्टी चोखा. I've never had it before. यू शुड ट्राई इट. आपकी चाट बहुत ही अच्छी है. थैंक यू टमाटर सो की चाट मच. इज आउटस्टैंडिंग. बिल्कुल बनारस की घाट वाली फीलिंग. Wow, आउटस्टैंडिंग. Okay. Good reviews of the food. थैंक यू. तो आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली रांची झारखंड से हूँ. और आपने क्या किया? एजुकेशन कहाँ करी है? मैं एक बायोटेक इंजीनियर हूँ MIT मणिपाल से. ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने हिमालय ड्रग्स में काम किया, रिलायंस कैपिटल में काम किया. उसके बाद मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट तब था जब मैंने स्विगी ज्वाइन किया. वो कौन से ईयर में था? 17 to 19, 2 साल मैंने काम किया. बैंगलोर में? जी. तो मैंने उस समय एक कंपनी चालू करी, नट एंड बोल्ड, जिसमें हम एक एजेंसी की तरह उनका पूरा एंड टू एंड ऑनलाइन बिजनेस संभालते थे. हम कहते थे कि आपको स्मार्ट डाइन इन कस्टमर्स को सर्व करने आता है, आप वो करो, हम पूरा आपका ऑनलाइन बिजनेस संभालेंगे. बट हमें क्या रियलाइज हुआ कि जो टेल एंड रेस्टोरेंट्स हैं, अगर एक न्यू स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू ऐड हो इनके पीएनएल में, जिस पर प्रॉफिटेबिलिटी उनको गारंटीड हो, तब पूरा इकोसिस्टम सेंस बनाएगा. तो हमने 2022 में अप्रैल में पिवट लिया दिल्ली से. तो बेसिकली आपने अपनी किचन नहीं खोली, किचन किसी और की यूज कर. करेक्ट. बट वो क्यों देंगे आपको अपनी किचन? Great question, bro. कस्टमर्स को भी सर्विस कर रहे हैं. 98% of the restaurants in India are underutilized. अंडर यूटिलाइज का मतलब क्या, आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? लेट्स से आपका 200 का पोटेंशियल है और आप अभी 50 ऑर्डर्स कर रहे हो. तो जो बैलेंस के 150 ऑर्डर्स हैं, उसके हिसाब से हम आपको ब्रांड्स असाइन करते हैं कि ये जो. I'm curious, is she a marketeer by nature? Because she's doing a very good job at presenting this, right? Her answers are spot on. She's doing such a good job, bro. I'm so impressed by her right now. डेमोग्राफिक प्रेजेंस है. सपोज आप पवई में हो, मुंबई में, तो यहाँ पर ये डेमोग्राफी है, ये ब्रांड हमें खोलने हैं इस लोकेशन पर, तो हम वो आपको ब्रांड. Look at it, listen to her enunciations. बेसिकली उसको फ्रेंचाइज बनाते हो इस ब्रांड का. इट्स अ वर्चुअल फ्रेंचाइज और वर्चुअल फ्रेंचाइज बनाते हैं. और ये ब्रांड्स आपके ब्रांड्स हैं या कोई? ये ब्रांड्स ओन्ड बाय अस हैं. ब्रांड्स एंड रेसिपी दोनों आप ही का ही है. ब्रांड्स, रेसिपी, सप्लाई चेन इवन तीनों फूड हमारा मटेरियल भी है. आप ही का ही है. जी.
Wait, brands, recipes and supply chain is owned by Dil Foods, लिखा हुआ आ रहा है नीचे. So I'm trying to understand this. Like अगर मेरे पास एक restaurant है और वो restaurant से मैं खुश नहीं हूँ या वो बंद होने की stage पे है, तो I can partner with these guys and they will change my brand, my restaurant's name and everything, right? Into the one of the 8 brands that they have, and then I will serve their food out of my restaurant. Is that what that is? Is that the business? तो रेस्टोरेंट का काम सिर्फ है हमारी रेसिपी के हिसाब से हमारे सप्लाई मिक्सेस यूज करके खाना रीजनरेट करके हमारे पैकेजिंग में पैक करके डिस्पैच करना. क्वालिटी कौन संभालता है फूड की? क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं. आपके because- लोग नहीं होते वहाँ पे? नहीं, हमारे लोग नहीं तो होते. आप हमारे डिपेंडेंट होते हो कि वो रेस्टोरेंट वाला अपने आप बना के भेजे? That's not reliable. इसकी गारंटी नहीं है. That is not reliable. हाउस ऑफ आंध्रा की स्पेशल करी खाई, ठीक है. इसको बनाने के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी लगा है. हम फ्रीज ड्राइंग यूज करते हैं फॉर आवर. ये फ्रीज ड्राइड खाना बेच रहे हैं. The genius part is कि उसने freeze dried को नहीं बेच रही है सिर्फ. She's selling brands. Oh my god, she's a genius, bro. Because freeze dried खाना is not a new thing, Indian खाना. तो यहाँ US में एक brand है, उसका नाम है Cumin Club. And what they do is you become a member of their club and then subscription based है. And they keep sending you these packets जिसमें freeze dried खाने होते हैं. वो खाने बुरे नहीं है किसी भी एंगल से. तो उसमें कड़ी होती है, भुजिया होती है, राजमा चावल की टाइप की चीजें होती हैं. It's not the real deal, but it's pretty tasty. It's pretty good. Like जब मेरे पास टाइम नहीं होता खाना बनाने का, जब मैं तंग हो चुका होता हूँ, डिप्रेस्ड होता हूँ, I eat it. I boil some water, put that in there. 5-10 मिनट में वो खाना रेडी है, ब्रो. उसको आप अपने चावल के साथ खा लो, अपनी रोटी के साथ खा लो, अलग से बना के. वो आपके हाथ में. It's not even like preservatives वाला food because it's freeze dried. I don't think they add any preservatives to it. It's real food. It's like space में जो लोग खाते हैं जाके. Damn, bro. So they're doing the same thing, but look at their scale. I don't know if Cumin Club is doing the same scales and same levels of like numbers, bro. I'm so impressed by this lady now. प्रोडक्ट्स लायोफिलाइजेशन यूज करते हैं जिसमें प्रोडक्ट को कुक करने के बाद You guys are gonna hate me, but I just do not like how Indian people pronounce the word product. And please don't get offended, guys. I'm not trying to offend anyone. Not fresh food. तो ये It's kind of fresh. मिथ है. आप जब एक रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हो और उसने टमाटर प्याज सुबह से जो काट करके रखा है, तो उसमें जिस प्रकार के माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं, बट हम फ्रेश बना के उसको -18 डिग्री सी पर within 15 minutes. Well, you keep it in the freezer or fridge, walk-in fridge, so it doesn't get any microbes on it. So that's not fair to like diss the competition, but I guess you have to do it because it's your competition. So restaurant में भी जो खाना मिलता है, but restaurant की quality control पर depend करता है. कुछ लोगों के fridges up to the standard नहीं होते हैं. They're not up to the mark that they need to be on temperature. So yeah, I understand she's right. Most likely restaurant का खाना is not healthy for you. It's not. 90% of the time. 100% बात है ये सच. इस टेम्परेचर पे लेकर के आते हैं और उसके बाद उसको फ्रीज ड्राई करते हैं, वो स्टोर करते हैं. तो वो एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है उस प्रोडक्ट पर किसी भी तरीके का स्पॉइलेज की. तो इट्स फ्रेशर देन व्हाट यू गेट इन रेस्टोरेंट्स. Can I see your video? ये कैसे बनाना है शेफ ये को? कैसे बनाना है ये That's exactly how you make Cumin Club, bro. पाउडर है जो डिहाइड्रेटेड Yeah. फॉर्म में है. क्या बना रही हैं? बटर पनीर बना रहे हैं. बटर भी इसी में है आपके पाउडर में? सब कुछ हमारे पाउडर में. तो पनीर भी आपने ही भेजा है? मैरिनेटेड पनीर हमारे साइड Okay. से हम भेजते हैं. तो आप डेली रिप्लेनिश करते हैं अपने रेस्टोरेंट्स को? हर 2 दिन में करते हैं तो फॉर मैं द 2 दिन पुराना प्रोटीन पनीर पार्ट. खा रहा हूँ अगर आपसे पनीर लेके खाऊंगा. 2 दिन पुराना तो आप खा रहे हो. दो दिन हर पुराना जगह. हर Okay. जगह मतलब? तो पनीर- She's saying 2 दिन यहाँ पे, but I'm telling you guys, it's not gonna be 2 days. It just doesn't make sense logistically. It's probably gonna be every week or every 5 days, once a week, pretty much. I'm guessing. पनीर की जो शेल्फ लाइफ होती है वो 6 दिन की होती है. Okay. जो सारे रेस्टोरेंट्स या होटल इंडस्ट्री होते हैं वो हर 3 दिन में उसको रिप्लेनिश कर रहे होते हैं. आई नो कि मैं एयरलाइन पे खा रही हूँ तो प्री पैकेज्ड फूड है वो मुझे जी. पता है. जी. अब मुझे रेस्टोरेंट के बारे में ये पता चलेगा तो थोड़ा बुरा लग रहा है. दिल टूटता है. ये कोई दिल स्पेशल टूटता प्रोसेस है. कोई और नहीं कर सकता? आपने खुद इंजीनियर किया है? ये फार्मा में बहुत यूज होती है ये प्रोसेस. फूड में इंडिया में बहुत लोग नहीं कर रहे. कहाँ पे आपका प्रोडक्शन? बैंगलोर में. आप बना क्या रहे? क्लाउड ब्रांड्स विदाउट किचन. Cloud brands with absolutely zero capex or close to zero capex. वेरी कैपिटल एफिशिएंट क्लाउड ब्रांड्स. जब से आपने ये पिवट किया है तब से आप अपना रेवेन्यू और एबिटा बता सकते हैं? लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट ईयर था ऑपरेशंस पे. लास्ट ईयर हमने 7 करोड़ का रेवेन्यू करा. एंड लॉस? 1 करोड़ का लॉस. Not bad at all, bro. अभी तक हमने 7 to 1 crore का ratio है, bro. That is so good, bro. And such big business, damn. Again, I don't think Cumin Club is doing that kind of business. 13.16 करोड़ कर लिया है एक्सीलेंट. in the last 7 shit. months.
फुल ईयर प्रोजेक्शन कितना है आपका? Damn, son. TCR 7 months में प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट हाउ मच अभी तक हमने 87 lakhs का टोटल प्रॉफिट किया है Good work. वेरी गुड Yes. और फुल ईयर Bro, she's dipped the needle towards the green light. Like 87 crore positive में green में आ गई है. And 2022 में business start हुआ है. And next year, 7 crore की income revenue लेके आई है. उसमें 1 crore का loss है. और उसके next year, she's actually in the green light. That is so crazy, bro. She should go to the, American Shark Tank after this and make it a global brand. Because come on, bro. She has the potential to do it. ईयर में क्या प्रोजेक्शन है आपका? 2.2 crores का प्रॉफिट करेंगे सही है सही है यार. 5% मान लेते हैं मोटा मोटी 5% है बेटा हाँ और 5% कितना फॉर द निवेश नेक्स्ट किया आपने कैपेक्स में अभी तक? 3.5 crores इन्वेस्ट किया है और सामान कैसे भेजते हो रेस्टोरेंट्स में कैसे सामान लॉजिस्टिक हमारी खुद की सप्लाई हाँ ना, उसने बोला था ना शुरू में. सप्लाई चेन जी What's हमारा wrong with लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी बहुत कम है less than 1% है Brilliant. रेस का बता दीजिए एक बार हमने जब शुरुआत करी दिल फूड्स की ड्यूरिंग इंसेप्शन अप्रैल में हमने 1 crore रेज करा था एंजल से उस समय हमने 7% इक्विटी डाइल्यूट किया था 14 crores के वैल्यूएशन पर करा था एंड उसके बाद उसी साल सितंबर में हमने एक और ब्रिज राउंड करा था उस समय हमने 40 lakhs 2022 में कंपनी की वैल्यू थी 14 करोड़. फिर इस साल फिर Feb कंपनी में की वैल्यू हो गई 40 40 lakhs करोड़. again, 40 crores के वैल्यूएशन पर सितंबर में. उसके बाद फिर हमने Feb 23 में 15.5 crores रेज किया है 13.5 करोड़ जी 75 crores के वैल्यूएशन पर Then why do you want 50 lakhs from Shark Tank? I know why. हम शार्क टैंक पे पैसे नहीं लेने आए हैं Fucking knew it, bro. हमें एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी है एंड इस कंपनी को बनाने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की जरूरत है Yup. आगे चल के बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे स्टेक होल्डर Bro, I called it, bro. I fucking called it, bro. Think about it. 50 लाख पैसे मांग रहा हूँ. 50 लाख क्या है इस शार्क टैंक के लिए? चिल्लड़, राइट? सबको मिला के तो स्पेशली चिल्लड़. 0.5% ऑफर कर रहे हो शार्क्स को. उनको पता है ये यहाँ पे पैसे लेने नहीं आई है, ना तो इक्विटी देने आई है. ये हमारे लिए आई है, राइट? एंड 100 करोड़ का बिजनेस ऑब्वियसली. इफ यू वॉच शार्क टैंक यू ऑलरेडी नो दिस. कोई कमाल नहीं है, मैंने कोई कमाल नहीं किया गेस करके. इट वाज वेरी ऑब्वियस. मैनेजमेंट होगा तरह तरह के क्राइसिस आएंगे तो जिस पर्सपेक्टिव से फाउंडर्स सोच सकते हैं जिस पर्सपेक्टिव से फाउंडर्स हेल्प कर सकते हैं इन चैलेंजेस में ओके ग्रेट पिच That's also bullshit कि founders no, founders कोई जादूगर नहीं होते हैं. Founders कोई खुदा नहीं होता है. What she's not saying is कि जिस तरह से आप लोगों का पौवा है इस दुनिया में, इस बिजनेस मार्केट में, जिस तरह से आप लोगों का नाम है मार्केटिंग की दुनिया में, जिस तरह शार्क टैंक पे आने से आधा काम हो जाता है हर कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग के तौर पे, मार्केटिंग के तौर पे, हमें वो चाहिए. हमें आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है ना फोन के अंदर वो चाहिए. फाउंडर ये सब बातें हैं ब्रो. फाउंडर जैक ने क्या कर लिया? जैक ने ट्विटर बनाने के बाद क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ा. इलॉन मस्क ने क्या उखाड़ लिया? उसने शुरू से कुछ नहीं उखाड़ा. उसने दूसरों का काम चुरा के अपना नाम उस पर लगाया, खरीद के पैसे लगा के. इलॉन मस्क ने खुद कुछ नहीं उखाड़ा. ये बात आपको अगर नहीं पता तो आप बहुत ही डम इंसान है कोई. बिल गेट्स ने क्या उखाड़ लिया? वो आज तक पता नहीं इधर उधर की चीजें कर रहा है, पैसे बना रहा है, बस पैसे बनाने आते हैं. तो फाउंडर को पैसे बनाने आते होंगे आई गेस. बट अदर देन दैट फाउंडर की जो फोन बुक है ना वो इंपॉर्टेंट है. अर्पिता मैं आपको ऑफर देती हूँ ओह ऑलरेडी. आप अपने कंज्यूमर विच इज बोथ रेस्टोरेंट्स एंड कस्टमर्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है. आपने जो इनसाइट्स बोली थी बहुत पावरफुल इनसाइट्स थी. कई साल लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में. एंड हमारी इंडस्ट्री में भी कहावत है कि अगर गोल्ड रश होता है ना तो उसमें आपको शॉवल बनाना चाहिए बिकॉज सब लोग गोल्ड के पीछे भाग रहे होते हैं. Yeah, it's a very आपने old जैसे saying. एक सोचा कि रेस्टोरेंट खोलने की जगह मैं रेस्टोरेंट्स को कैसे एम्पावर करूं एंड जिससे वो भी पैसे बनाए एंड कंज्यूमर को भी कुछ मिले. तो आई थिंक वेरी इंसाइटफul थिंकिंग. तो मैं क्या- आपको आपने जो आस्क किया था 50 lakhs हमें पता है उसकी चार्ट बहुत मजे की, पर आप कितना चार्ट है? 4.5% वो भी ऑफर करेंगे. आई नो So she's giving her the original ask. खत्म. एपिसोड खत्म हो जाना चाहिए यहाँ पे, राइट? it is a 25 crore higher than your last round, but I really want to work with you. Because you're thank you, very Vinita. impressive. That is a high compliment, guys. जैसे आपने बोला रेस्टोरेंट पैसे बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं पैसे तो हर जो प्रोडक्ट Wait, what happened to her offer, bro? They're just gonna move on? She's not gonna say yes, no, or this or that? They're just like gonna ignore her? Are you serious right now? होता है उस पर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गारंटीड होती है. They're moving on. कढ़ी चावल विनीता ने खाया उसका कॉस्ट है 149 रुपीज जो हम कंज्यूमर को बेच रहे हैं. No respect, bro. लेट्स से 45 रुपीज दे दिया. अब उसको कॉस्ट ऑफ Okay. प्रोडक्शन वो बनता है 26 रुपए. उसके ऊपर उसको 40% का प्रॉफिट मिल गया. थोड़े आपके यूनिट इकोनॉमिक्स बता देंगे? सो हमारा जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 300 रुपीज का है. स्वीट स्पॉट है 300. आपने बहुत अच्छे से सोचा बिकॉज डिलीवरी एप्स का भी 300 से 400 ही रहता है लगभग. सो उसमें जो हम रेस्टोरेंट She's like- पार्टनर्स को पे करते हैं ऑल्दो वो फिक्स्ड अमाउंट होता है ऑन ईच एसक्यू बट एज अ परसेंटेज
इट इज अराउंड 31% एंड उसके ऊपर हमारा पैकेजिंग कॉस्ट होता है 6% का एंड हमारा ग्रॉस मार्जिन 63% है. उसके ऊपर हम स्विगी जोमेटो को कमीशन पे करते हैं विच कम्स टू 22%. मार्केटिंग कॉस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म हमारा 10.5% है. 1% marketing cost भी लगती है. लॉजिस्टिक्स और दूसरे मिसलेनियस चार्जेस में जाते हैं. उसके अलावा जो हमारे शेफ्स उनकी सैलरी 1% बनती है तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 28.5% होता है. Contribution margin. You know what that means? Yeah, that's exactly what you think it means. Chef salary 1%. This is why I don't really love capitalism, guys. सबसे ज्यादा मेहनत जो करता है ना वही गधा होता है. गधा ही सबसे ज्यादा मेहनत करता है ना. देखा ना आपने सड़क पे गधा ही खींच रहा होता है पूरी गाड़ी को क्या मिलता है आखिर में? डंडे और थोड़ी सी घास. Chef salary is 1% of the business. Barely. Not even the business, the unit. Labor cost 1% है इसकी. It is brilliant if I'm being a capitalist, but if I'm being a human being, that's डिस्कस्टिंग. एक इंसान की मेहनत का फल उसको ये मिलता है और हम सब इतने फैन बनते हैं ना कि ओ इलॉन मस्क बिलियनर है, मैं उसका फैन हूं, मैं भी ऐसा बनूंगा एक दिन. तुम नहीं बन सकते ऐसे एक दिन. ये बात लिख लो आज. नहीं बन सकते, ना बनोगे. ओ अंबानी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बिलियनर हैं, वो तुम्हारा पैसा चुरा के बने हैं बिलियनर. कोई भी बिलियनर बन ही नहीं सकता बिलियनर बगैर अपने एम्प्लॉयज का पैसा चुराए. मैं 10 दफा बोल चुका हूं, मैं दोबारा बोलूंगा. ये शार्क टैंक को बहुत बुरा लगेगा ये सुन के, पर कोई भी बिलियनर इस दुनिया में बिलियनर बन ही नहीं सकता जब तक वो अपने ही एम्प्लॉयज के पैसे ना चुराए उनसे. और चोरी का भी तरीका अलग होता है. ऐसा नहीं होता कि चुरा लिए तो आपने पुलिस केस कर दिया, अरे मेरे पैसे. नहीं, आपसे मनवा के चुराता है वो. आपको खुश करके चुराता है आपके पैसे कि तुझे मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ. 2 लाख कितने सारे होते हैं, जबकि तू बना उस कंपनी के लिए 2 करोड़ है. और ये स्टोरी है शुरू से रही है, मुझे पता है. मेरे अब्बा गुजरे इस चीज से. मेरी फैमिली में इतने लोग हैं, मैंने देखा है. They've been job workers their whole life. They've made billions, millions for their company, and they get 1% of it, right? So that's the side. I don't know, man. I don't know. Okay. हमारे सैलरीज कॉस्ट इसमें रॉ मटेरियल आपने काटा नहीं? वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है. वो एक हम अलग बिजनेस वर्टिकल की तरह देखते हैं उसको. अच्छा, ठीक है. कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद हमारी जो सैलरी कॉस्ट है वो तकरीबन 12% के आसपास आते हैं एंड जो फैक्ट्री दूसरे कॉस्ट है वो 4.88% का आता है. तो लास्ट मंथ जो हमारा EBITDA, I mean 12 to 13% labor cost is again very low, which is ideal for a capitalism minded business person, entrepreneur. This is what all business owners strive for कि भाई 14% 11% अगर labor cost है तो भाई जिंदगी सुकून में फूड बिजनेस में. I know this because I've ran a food business before. I understand it. आपकी अगर labor cost अगर food cost से आती है तो आप सही कर रहे हो बिजनेस अपना. अगर आपकी फूड कॉस्ट जो है वो आपके टोटल ओवरऑल कॉस्ट के लाइक 20% है, 15 से 20 से 25 के बीच में कहीं भी घूम रही है, you're okay, you're doing okay. था वो 11.65%. कमाल हो यार आप. बात सही है अमन भाई. Your numbers is Yes, ma'am. outstanding. थैंक यू राधिका. सुबह शाम दिन रात यही देखते हैं. कि what is your 5-year vision? हम 7,500 crores की कंपनी बनाना चाहते हैं. You will do Which is what, $1 billion? Isn't that what that is? Right? She wants to build a unicorn. That's what she wants to do. ऑर्गेनिकली आपको लगता है इनऑर्गेनिक रूट भी आप अपनाएंगे? We are open to all, पीयूष. हम थोड़ा सस्टेनेबली तो बिजनेस बनाना चाहते हैं. Whatever बहुत gets us ज़्यादा there. burn नहीं करना चाहते. लेकिन 3 साल के बाद वाले चैलेंजेस के बारे में मुझे अभी नहीं पता है. You are a damn good business. So impressive. You are. So impressive. So much, राधिका. Every 5 They're all minutes of flabbergasted, this bro. Conversation, आपने मेरा दिल incrementally जीता. थैंक यू सो मच. एक तो आपका बिजनेस मॉडल, आपने शुरुआत प्रॉफिटेबिलिटी से की. आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाना चाहती हैं. आपको अपने नंबर्स पे बहुत कंट्रोल है. कैपिटल लाइट बिजनेस चला रही है. आई थिंक यू आर फिनोमिनल बिजनेस वुमन. आई वोंट टॉप विनीताज ऑफर. मैं आपको सेम ऑफर दे सकती हूँ. इफ शी इज ओके आई कैन आल्सो जॉइन द ऑफर. Wow. थैंक यू. सबसे पहले तो आपकी बिजनेस की गहराई बहुत स्ट्रांग है. थैंक यू. मेरा मानना है आप जितनी गहराई में जाएंगे उस आपकी बिजनेस उतनी ऊंचाई में जाएगा. 50 Vertical. लाख का ऑफर मैं भी आपको दूंगा सेम परसेंटेज पे, पर हम दोनों साथ में मिलकर के 1 करोड़ एनेबल कराएंगे 1% के लिए, जिसका मतलब आपको कैपिटल ज्यादा मिलता है और ज्यादा लोग साथ जुड़ते हैं. और अगर आप ऑफ कोर्स चाहे तो राधिका जी भी जुड़ जाएं हमारे 1.5% हो जाएगा फिर. हम लोग तीनों आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं. तो आपके पास 2 ऑप्शन है हमारे तरफ से. एक ऑफर है 1 करोड़ फॉर 1%. No. 1.5 करोड़ फॉर 1.5%. I mean, that is the original ask. I get it. पर अगर 2 लोग इंटरेस्टेड आने में, you should start playing some games. That's what I'm saying. में कोई बदलाव नहीं है. आपको कितना कैपिटल देना है वो आपका चॉइस है. जी. You are an incredible entrepreneur. आप ऑनेस्ट हैं, राइट? आप डिटेल में बताते हैं. You're able to articulate. Yeah. काम आपका कंपोजर है, which I think is important for a leader. थैंक यू. You will do very well. So I'll join them in the offer. Nice, bro. She's getting what she came here for. Wants to own at least Brilliant, bro. 50% of Brilliant. your business to make it worth their time.
So Yeah. 50 lakh, 50 lakh, 50 lakh, 50 lakh. 2 crore. 2 crore for 2%. Before Mr. Gupta speaks. Aman, do you want to get in? Yeah, Too of many course. cooks spoil the broth. Oh. आपको ऐसा नहीं लगता भी कि इतने सारे शार्क्स जब आ जाएंगे Too many cooks spoil the broth. It's the saying goes, too many chefs in the kitchen. Okay, this one makes sense too. I'm not gonna blame him for this one. ये ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने के लिए एक बड़ी आर्मी लगती है। स्टूड हो गया मैं अगर 5 साल के बाद से पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मुझे चाहिए हर एक्सपर्टीज वाले लोग। सो अर्पिता, अगर 5 शार्क्स चाहिए तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन थोड़ा Can we change come at होगी। your last राउंड round, 75 like what? करोड़ वाले राउंड पे ही आएंगे। आई एम ओके विद दैट। If Aman is on board, Aman has not said yes. I am out. मुझे लगता है मेरा टाइम अगर मेरे को देना है तो मैं किसी उस एंटरप्रेन्योर को दूं जिसको ज्यादा जरूरत है आपसे Absolute, तो absolute. अनफॉर्चुनेटली आई एम I know. Thank Damn, bro, that is some intense reasoning there. Oh my god, I respect Aman so much, यार. Damn, he said किसी ऐसे को तो उसको जरूरत है और आपको मेरी जरूरत नहीं है. And he's spot on with that. Gotta respect the guy, man. And he fucked over the other sharks. Valuation कम हो जाती है अगर याद आता तो. उनके पैसे थोड़ी value बढ़ जाती. So yeah, Aman, bro. Aman is a fucking G. He's a true G. you. 2 crore for 2.67%, Oh, Let's which do it. is 4%. she did it. Thank you. Thank Well you. done. Thank you. She just gave money away. They would have signed on if she would have just stuck with 2%. She would like, no, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, like you guys originally accept. Why did she say 2.75% pay? Yes, she gave up 0.75%, and 0.75% of 7,500 crores is a lot of money, bro. It's so much money, like it's crazy amount of money. So what just happened there? Why did she just say, okay, let's do it? Bro, you have all the power in your hands. They're dying to be part of your business. उनको पता है free money. They have to make phone calls, set you up with whatever your plans are, and you're gonna make the money. You're gonna make it a unicorn. What the bro? What a brilliant entrepreneur. She's such an amazing entrepreneur. Oh my god, bro. We can't even imagine actually. This is beyond imaginations how she's done what she's done. And she came up with such a great idea on top of other ideas. Freeze dried khana to yahan bhi bik raha hai, bro. And I was like, what's so unique about that? The unique part is that how she's fucking used it to take over restaurants, take over failing businesses, help them help her. Oh my god, bro. My mind is just blown by what she's done. This is so amazing, so impressive. कमाल यार कमाल. दिस इज व्हाई आई लव शार्क टैंक इंडिया ब्रो. शार्क टैंक इंडिया में कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं कि आप बोलते हो भाई कहाँ, अभी तो अमेरिका भी पीछे है इनसे यार, इनके दिमाग के लेवल पे पहुंचे नहीं है लोग. शी इज टेकिंग ओवर ब्रो. शी इज गोना फकिंग रूल द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इन द होल कंट्री वन डे, एंड देन हु नोज ग्लोबली मे बी, बिकॉज इंडियन फूड इज ग्लोबल. लेट्स फेस इट, लाइक इट्स नॉट लाइक जस्ट secluded to India. Indians everywhere, right? Indians, Pakistanis, Bengalis, they're everywhere in the world, and they all eat their desi food. I don't mind going to an Indian restaurant. Indians don't mind going to a Pakistani restaurant. Well, some Indians who are vegetarians, they mind maybe, but most people go, they don't care. So why yaar, कमाल bro, कमाल कर दिया इस लड़की ने, जीत गई भाई. Full mad respect भाई आपको. Bye bye.